you have chosen a particular book or a particular magazine for your studies, stick to that. खुद से honest रहो, be honest with yourself. GS3 का मॉड्यूल आता है शिविन सर का, है ना? शिविन सर, मैंने इसी को किया था. मेंस के लिए इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. So do things what suits you and what is in your schedule for that day. Because don't invest your so much of time in reading newspaper. See, your priority has to what? To solve the previous year questions, prelims or mains ka. The best test to check your quality of preparation is to solve the previous year question. आपको जो सारथी में आप पढ़ रहे हो क्लास में आपको यहाँ पे मिल रहा है, आपने खुद से जो कुछ बनाया आप उस पे ही स्टिक रखें. ज़्यादा इधर उधर करने से आपको लगेगा यूपीएससी कुछ नया दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. हेलो एवरीवन, so guys, today we are going to have a beginner's kit session on what is the realistic time routine a topper, I would say recommended candidate, is following in his or her UPSC preparation. So this is the agenda of today's session. I am sure that you must be preparing for 2027 or the forthcoming attempt. I believe none of you are here who is going to attempt 2026 paper, right? I think most of you are attempting 2027 or 28 or maybe coming years. Yes. So most of you are 27. So I want to give you a brief introduction about myself. My name is Aniket Ranjan. I have secured All India rank 48 in this year UPSC Civil Services Examination 2025. Last year, I got into Indian Revenue Service, Customs and Indirect Taxes. So this was my fourth attempt. So I can tell you with my personal experience, what are the do's and don'ts which an aspirant should always follow, and why it takes so much of attempt to clear this examination. So there are certain mistakes, there are certain potholes one should avoid, which I will try to share with you. But today's agenda is basically related to how you should be planning your schedule, how you should be planning your macro plans as well as micro plans. Macro means a broader scale कि कैसे आप जो है आने वाले समय में जो है अपने प्रीलिम्स को मेंस को इंटीग्रेट करके पढ़ाई करोगे, एंड व्हाट आर योर प्लान्स फॉर ईच एंड एवरी डे. सो लेट मी टेल यू दोस थिंग्स, देन आप जो है आपके क्वेश्चन, टेकिंग योर क्वेश्चंस एंड आई विल गिव यू. Okay, so you will be having this beginner's kit in session, so it is there. ठीक है, तो daily routine of rankers, this is what it is. So I would like to give you something brief which is in my mind, which will be there also in the slides. तो what I want to tell you, पहली बात तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि see UPSC Civil Services Examination preparation, right? So इसके कुछ ना पॉइंटर्स होते हैं, हाउ योर स्टडी शुड बी. सबसे पहला हो जाता है आपका नॉलेज गैदरिंग, राइट? नॉलेज, ठीक है, नॉलेज या इंफॉर्मेशन की बात आप कर सकते हो, ये होता है, ठीक है. दूसरा होता है आप कितना इसका प्रैक्टिस करते हो. प्रैक्टिस मीन्स व्हाट? प्रैक्टिसिंग योर मतलब प्री के क्वेश्चंस हो गए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मीन्स आंसर राइटिंग, राइट. एंड थर्ड होता है कंपोनेंट which is it is important, that is called revision. Okay, and the last thing which I would also like to add you, at limited resources. I am sure you will listen the limited resources from many toppers. Everyone who has secured a good rank, a good service, they will always say you should have limited resources. If you have chosen a particular book or a particular magazine for your studies, stick to that particular magazine or that book. Okay, and revision is the key. Many a times what happens,
we have studied a particular chapter or we have studied from particular book, we feel very lazy and we feel that there is nothing new, there is nothing interested in that particular book, so I will not revise it. But this is what UPSC is all about. You have to be boring. So revision is very important, essential component. And you have to practice a lot. Practice what? Pre-K questions you have to practice, and mains answer writing is what is needed. And knowledge or information collection is very important, because this is what will make your base, right? So this is what it is. Okay. So now coming to this section. Okay. So daily routine, okay, time management. So you have to focus on time management also. Focus on discipline, consistency, and smart scheduling. What does this mean? Discipline, consistency, and smart schedule. Discipline and consistency means that today you have studied for 10 hours, 12 hours, but tomorrow you have taken a gap. Tomorrow you feel like yesterday I have studied for these many hours. You should not be doing it. Everybody will tell you, if you are studying for 4 to 5 hours, 6 hours, study for 4 to 5, 6 hours. That is what discipline, consistency, or dedication means. And you have to be smart scheduling. You have to put your schedule as per your smartness also. I'll come to that point. And importance of balancing study, revision, and mental well-being. I have told you, studying means what? Information collection. Revision is very important, and mental well-being is also important, because many a times you will feel burnout. Okay. Burnout why? Because practical routine should be followed during UPSC preparation. This practical routine is very important. उतने ही दिन का या उतना ही टाइम का आप शेड्यूल बनाएं जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हैं. Do not make any idealistic कि इस समय से इस समय I'll sleep, इस समय I'll read for 10 hours, 12 hours. It will not happen. It will not be, a sustainable study. You will feel burnout, you will feel stressful, you will feel FOMO. Okay, you won't be able to do it. I'll come to these things, but what is the takeaway from this lesson? That discipline is very important. Everyday study is very important. Suppose today you have got fever, or you got some kind of disease, or aaj man nahi kar raha hai, so that's okay. But consistency most of the time has to be there. Okay. And revision is very important. So these two things, this consistency and revision, has to be the part of your daily schedule or daily study. Now coming to the next, early morning discipline. See, every student have different approach in their studies. I am a person who used to study in the early morning. I used to wake up by 4:30, 5, depending upon the time, okay, when I have slept in the night. कभी दिन में सो गया तो उस हिसाब से I am programming. But most of the time 6, 7 is the deadline एक तरीके का, मतलब last which I wake up. So 6. So it depends upon you. If you are feeling comfortable at the night, you can follow that schedule. But most of the time, because your exam is in the morning time, like prelims will be by 9:30 a.m. in the morning. Mains also you have to give by 9 o'clock. So naturally you have to be in the morning schedule. So this is what it is all about. Like begin early to maintain the clarity and focus. Most of the time what I used to do in the morning, I used to revise it. Revision करता था मैं. मॉर्निंग में मैं क्या करता हूँ? रिवीजन करता हूँ. रिवीजन किसका करता हूँ मैं? सपोज मेरे पास डेटा है, आई यूज्ड टू रिवाइज डेटा, फैक्ट्स. ओके, हिस्ट्री को मैं रिवाइज करता था यहाँ पे. आई यूज्ड टू डू दिस थिंग्स. क्यों? क्योंकि सुबह बहुत शांत माहौल होता है. योर माइंड इज ऑल्सो वेरी काम. And most of you who is reading or who is studying in the morning, they'll realize that subha mein if you study, then you will retain the things faster, and it will help you to retain faster. Okay, retain faster, I'm sure. So this is very important. So it has worked for me. Or any topic or subject which you feel that कि इसमें तो बहुत टाइम लग रहा है, मुझे जल्दी याद नहीं हो रही है, थोड़ा सा एफर्ट लग रहा है, तो ट्राई टू रीड इन द मॉर्निंग. बहुत बेस्ट टाइम होता है 5 o'clock, 6 o'clock से लेके 7, 8 o'clock तक you can study. Okay. मॉर्निंग आर्ट्स यूज्ड टू बी हाई कंसंट्रेशन सब्जेक्ट विच रिक्वायर्स कंसंट्रेशन, जिसमें आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी या वट एवर यू फील लाइक, जिसके लिए जो टफ पेपर हो सकता है वो करता था. मैं मोस्टली हिस्ट्री को पढ़ता था, बिकॉज हिस्ट्री हैज आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, यू हैव वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो, मॉडर्न हिस्ट्री ऑल्सो.
राइट. देयर सो मेनी अदर पेपर्स ऑल्सो. देन इसको मैं जब कंप्लीट कर लेता था तो कुछ भी फैक्चुअल डेटा टाइप की चीज़ें हो गई, इकोनॉमी से डेटा कुछ हो गया, या उन सब चीज़ों को, स्कीम्स को याद करना हो गया. बस उस तरीके की चीज़ों को मैं जो है सुबह में पढ़ाई करता था. रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन दैट हेल्प इन प्रोडक्टिविटी. डिस्ट्रैक्शन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप फोन नहीं चलाते हो, फोन कॉल्स नहीं आपको आते हैं, वो सारे चीज से आप जो है यहाँ पे दूर रहते हो. सो दैट्स व्हाई मॉर्निंग रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डोंट वरी, आई विल टेल यू कि सुबह कैसे करना है, कितना कैसे पढ़ना है, आई विल टेल यू एवरीथिंग. बट मैं बेसिक कुछ कुछ अभी बता रहा हूँ. अब कैसे करेंगे कि आपको लगेगा कि भाई कैसे पढ़ाई करें, स्टार्ट भी पढ़ाई कैसे करें. If you are enrolled in any of the programs, coaching at Sarthi IAS or whatever places, so stick to that. If you are part of the Sarthi IAS Foundation course or any of the program, so whatever is being taught here, you study by that timeline, and whatever time is left with you, suppose you will be having class for around 3 to 4 hours here. 3 to 4 आवर्स अगर यहाँ पे होगा, सपोज आपके पास 4 आवर्स का क्लास यहाँ पे हो रहा है, या कहीं पे भी कुछ भी आप कर रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, I'll give you the book list. 4 आवर्स की स्टडी कर रहे हो, तो सपोज आप एटलीस्ट जो है आप इसमें लेक्चर देखोगे. आई ऑलवेज फील दैट लेक्चर इज नॉट स्टडी. मेरा ये मानना है, इक्वेशन विच आई फॉलो, दैट लेक्चर्स इज नॉट इक्वल टू स्टडी. Lecture, what will give you? Lecture will give you conceptual clarity. Lecture will give you vast amount of content in a shorter span of time. But you have to put your effort. How you will put your effort? You will read through the notes, you'll go through the value added material or content which is being provided by the Sarthi or coaching, or you'll read the standard textbook, because that will make you to retain that concept. Otherwise आज तो टीचर कुछ आपको बोल देगा, आप कल भूल जाओगे, 4 दिन में भूल जाओगे. Okay, so remember one thing, lecture is not always equal to your study. You have to revise it, you have to make notes out of it, you have to read the textbook. Okay, this is very important. Suppose 4 आवर की आपकी क्लास होती है, आप मे बी 1 आवर या 1.5 आवर्स उसके रिवीजन में लगाओ. ठीक है, 1 to 1.5 आवर्स रिवीजन में लगा दिया आपने, एंड बचे हुए आपके पास जो है 3 आवर्स अगर आप और पढ़ लेते हो, क्योंकि देखो आपके हो ही जाएंगे ना 7-8 घंटे, तो कोई भी पढ़ता है. 3 आवर्स में आप क्या कर सकते हो? क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट, करंट अफेयर्स देख सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या फिर जो भी आपका पेंडिंग चीज है वो कर सकते हो. सो दैट्स हाउ द शेड्यूल विल गो ऑन. एंड क्लासेस तो आपको हर समय होंगे ही नहीं, राइट. तो ये आपको देखना है. आपको जीएस को फोकस करना है, ऑप्शनल को फोकस करना है, और करंट अफेयर्स को फोकस करना है. हाँ, आपको जो है ना वो सारे जो सेशंस हैं, बुक लिस्ट क्या होंगी, वो सारी चीज क्या होंगी, यू विल गेट सो मेनी अदर सेशंस आल्सो. आई एम आल्सो कमिंग विद सो मेनी अदर सेशंस, सो यू विल बी गेटिंग दोस सेशंस. तो मेरा आज का एजेंडा जो है, इट इज ओनली फॉर डेली टाइमलाइन का करके. आई विल गिव यू, मतलब जितना होगा मैं करूंगा आपके लिए. फॉलोड रियलिस्टिक डेली टारगेट इंस्टेड ऑफ ओवरलोडिंग. ये डेली टारगेट्स करना बहुत जरूरी है. ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? मेनी टाइम्स व्हाट वी डू, आज सुबह उठेंगे 7 बजे से लेके 10 बजे तक पढ़ेंगे, फिर 1 घंटे का 1.5 घंटे का ब्रेक लेंगे, एंड दैट्स हाउ विल प्लान आवर थिंग. 1 या 2 दिन सस्टेन कर लोगे, बट यू वॉन्ट बी एबल टू फोकस ऑन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ये एक बात को ध्यान रखना, टारगेट स्पेसिफिक करना. सपोज आपका पॉलिटी, आपके पास 30 चैप्टर्स हैं, सपोज पॉलिटी में 30 चैप्टर्स हैं. अब 30 चैप्टर्स में भी तो प्रायोरिटी है. शिविन सर ने जो है अपने यूट्यूब चैनल पे, सारथी पे भी बता रखा है व्हाट इज द क्रोनोलॉजी टू स्टडी लक्ष्मीकांत. तो उन्होंने पहले बताया कि आपको कुछ एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करना है, राइट. आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है प्रेसिडेंट से स्टार्ट करने बोला है उन्होंने. प्रेसिडेंट है, फिर उसके बाद आपका जो है जो भी यूनियन कैबिनेट एंड सो मेनी थिंग्स, तो वो है. तो आप एक दिन में देखो कि प्रेसिडेंट के तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, छोटे चैप्टर्स हैं. सो सपोज एक दिन में आपने 5 चैप्टर्स कंप्लीट किया, तो आप देखो 5 चैप्टर्स को कितना टाइम लगता है मुझे कंप्लीट करने में, हाउ मच आवर्स और टाइम आई विल टेक टू कंप्लीट दैट 5 चैप्टर्स. तो आपने देखा कि भाई 5 चैप्टर्स को कंप्लीट करने में मेरे को 4 आवर्स लगेंगे या 3 आवर्स लगेंगे, तो आपने 3 आवर्स उसमें डाल दिया, 3 आवर्स आपने उसमें डाल दिया. दैट इज कॉल्ड टारगेट स्पेसिफिक. सो नॉट ओवरलोडिंग इट. 30 चैप्टर्स है, आपने 5 चैप्टर्स को कर दिया कि आई विल स्टडी 5 चैप्टर्स एवरी डे. पार्लियामेंट का चैप्टर इज वेरी ह्यूज, राइट. तो you won't be able to complete even that particular chapter on one day. So parliament chapter maybe you will take 3 days to revise या 4 days depending upon your pace. So that's how you make it. अब आपने जो है 10 days लगा दिया, सपोज आपने ऑन एन एवरेज 10 days लगा लिया, और पॉलिटी आपने 10 days में कवर किया. तो आप जो है 3 hours पर डे दोगे 10 days के लिए,
एंड फिर साथ ही साथ क्या करोगे आप उसमें रिवीजन के ऊपर भी फोकस करोगे, आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी करोगे और टेस्ट भी लगाओगे और करंट अफेयर्स भी देखोगे. सो दैट्स हाउ यू स्टडी. फोकस रिमेन ऑन कंसिस्टेंसी रेदर देन लॉन्ग आवर्स. कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी है. ओके ओके, yes, so that's why I'm telling you that this is target specific. I'm sure you are you got understood like what is target specific means. कैसे टारगेट स्पेसिफिक करना है. इकोनॉमी पढ़ना है तो बैंकिंग का चैप्टर है, स्टार्टिंग में बैंकिंग है, शेयर मार्केट्स है, वो सारी चीजें हैं, राइट. आप उसमें ब्रेक करोगे. सपोज ये पर्टिकुलर कंटेंट है, मैं कितने दिन में कवर करूंगा, बिकॉज यू नो योर कैपेसिटी. लाइक आई विल बी एबल टू कंप्लीट लाइक 100 पेजेस इन 2 days. 50 पेजेस आप कर लोगे. आप टाइम भी तो दोगे, 3 to 4 आवर्स दोगे ना. बर्न आउट होने से कैसे बचेंगे? सी देयर आर 2-3 थिंग्स टू रिलैक्स टू कम आउट ऑफ द बर्न आउट. एक चीज है, आपने बहुत ज्यादा टू आइडियलिस्टिक जो है टारगेट रखा हुआ है. 10 आवर्स 12 आवर्स पर डे कर रहे हो. नहीं, 10 to 12 आवर्स की स्टडी कब होती है? जब एग्जाम के क्लोजर आप जाते हो. सपोज प्रीलिम्स अभी 24 मई को है, तो अभी जो बच्चे पढ़ रहे होंगे ना, वो 10-12 आवर्स की पढ़ाई करेंगे. 1 मई से करेंगे या मे बी अप्रैल से करेंगे, क्योंकि वो लाजिम भी है. इट इज रिक्वायर्ड ऑल्सो बिकॉज यू हैव टू रिवाइज सो मेनी थिंग्स. यू हैव टू रिवाइज योर टेस्ट, पीवाईक्यूज, और जो भी आपका जो है पोर्शंस छूटा हुआ है वो आप करोगे. बट आपका 2027 का अटेम्प्ट है और अभी से आप 10-12 आवर्स करोगे तो यू वॉन्ट बी एबल टू सस्टेन फॉर लॉन्गर टाइम. तो तभी बर्नआउट होता है. आई विल गिव यू दोस थिंग्स. ठीक है. अब देखो यहाँ पे फिर क्या है. रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिवीजन इज दी कोर स्ट्रेटेजी. डेली रिवीजन बिफोर स्टार्टिंग न्यू टॉपिक्स. सपोज यू आर वेकिंग अप एट 6 o'clock, 6 AM. ठीक है, आप रेडी हो गए, सब कुछ आपने कर लिया. 6 AM से लेकर के मे बी आप 8 AM तक जो है, या जितना भी देर का आपको रिवीजन करना, रिवीजन सुबह कर लेना चाहिए. मुझे लगता है बहुत आसान होता है रिवीजन. आप उस समय रखें, 1-1.5 घंटा, आधा घंटा लगेगा. जो भी आपने लास्ट दिन पढ़ा है आप उसको एक बार रिवाइज कर लें, या जो आपको लगता है, जो टॉपिक्स लगते हैं, जो यू फील लाइक कि इट इज मतलब मैं फॉरगेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मुझे लग रहा है कि ये याद होना चाहिए, डेटा फैक्ट्स याद होने चाहिए, आप उसको रिवीजन कर सकते हैं. सुबह का टाइम आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. अगर आप रात में पढ़ाई करते हो, जब भी आप पढ़ते हो, तो आप एक स्लॉट अपना रख लें जिसमें 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो है रिवीजन को दें, जरूर दें आप. ठीक है. रेगुलर रिवीजन स्ट्रेंथन योर रिटेंशन एंड रिकॉल. रिकॉल वही जो है एक्टिव रिकॉल जो शिविन सर बताते हैं हमेशा, है ना. एक्टिव रिकॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सपोज आप पार्लियामेंट एज ए चैप्टर ले रहे हैं, आपने पीवाईक्यूज काफी प्रैक्टिस की है, तो पार्लियामेंट एज ए चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं. पहली बात तो इंपॉर्टेंट चीजें, अभी डिलिमिटेशन जो है इंपॉर्टेंट हो गया, तो आर्टिकल आप पढ़ेंगे कि कौन से आर्टिकल में डिलिमिटेशन लिखा हुआ है. डिलिमिटेशन जो है कौन से सेंसस के बेसिस पे लास्ट टाइम हुआ था. ठीक है. उसके बाद जो है हमने जो लोकसभा की सीट है फ्रीज कर रखी थी, तो किस लास्ट कौन से सेंसस पे फ्रीज कर रखी है, उसका डेट आपको याद रखना है. ठीक है. उसके आई थिंक सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर सकता है कि नहीं डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो वो डिलिमिटेशन को कर सकता है कि नहीं, कमीशन जो होती है नहीं कर सकता है. तो वो सारी चीजें जो है आपको आई टेल यू कि कैसे मैंने की थी. तो इस तरीके से एक्टिव रिकॉल करेंगे. आई एम श्योर एक्टिव रिकॉल तो आपको पता है, शिविन सर ने पढ़ाया, आप कर सकते हैं उस चीज को. ठीक है. शॉर्ट नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल टेल यू कि शॉर्ट नोट्स भी बनाना बहुत जरूरी है. ठीक है. एंड रिवीजन साइकिल्स यूज्ड इफेक्टिवली. एम्फेसिस ऑन कंसोलिडेशन ओवर एक्सेस रिसोर्स रहता है. इट इज अ बिग नो. इसको तो मैं हमेशा नो बोलूंगा. इसको ना कभी नहीं करना है. एक्सेसिव रिसोर्स कलेक्शन कभी नहीं करना है. मार्केट में गए, कुछ नया मुझे कंटेंट मिल गया, कुछ नया माइंड मैप्स मिल गया, कुछ नहीं है. आपको जो सारथी में आप पढ़ रहे हो, क्लास में आपको यहाँ पे मिल रहा है, आपने खुद से जो कुछ बनाया आप उस पे ही स्टिक रखें. ज्यादा इधर उधर करने से आपको लगेगा यूपीएससी को कुछ नया दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है. मेंटेनिंग बैलेंस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन. देखो, शॉर्ट ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है स्टडी सेशन में, क्योंकि बर्नआउट नहीं हो गए. मैं आपको टाइम अभी बताऊंगा. एंजॉय फिजिकल एक्टिविटी भी करना बहुत जरूरी है. रनिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, योगा कर लो, कुछ भी ऐसा कुछ एक्टिविटी कर सकते हो जिससे आपको फिजिकली जो है आप थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री हो सकते हो. ओके. एंड अवॉइड बर्नआउट थ्रू द बैलेंस शेड्यूल. मेंटेन सस्टेन इन प्रिपरेशन जर्नी. वही बात मैंने बताई है जो यहाँ पे लिखी हुई है. आई एम श्योर ये हो गया यहाँ पे. एंड रिव्यू डेली प्रोग्रेस. ठीक है. एट द एंड ऑफ द डे. आई थिंक शिविन सर ने आप लोगों को कुछ ऐसा बॉक्स करके बनाया होगा डेली टारगेट्स का, ऐसे करके. आई एम श्योर
ऐसा आप टिक करते जाओ, टिक करते जाओ। आई विल क्लियर यूपीएससी ऐसा करके आप लिख सकते हो। और आप बताओ कि 75% आपने टारगेट कंप्लीट किया या 90% टारगेट आपने कंप्लीट किया। खुद से ऑनेस्ट रहो, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। हैव यू डन दोस टारगेट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम? डू राइट इट। दैट इज कॉल्ड डेली प्रोग्रेस एट द एंड ऑफ द। ये मैं करता था, बट मेरा स्ट्रेटेजी अलग रहता था। ठीक है, आइडेंटिफाई वीक एरियाज, गैप्स इन योर प्रिपरेशन, वो करना है आपको, एंड प्लान योर नेक्स्ट डे इन एडवांस। आप रात में जब सोने जाओगे या फिर जब भी आप रिलैक्स करोगे, ट्राई टू थिंक, ओके आई हैव स्टडीड पॉलिटी इतना, टुमारो आई विल बी स्टडीइंग दिस थिंग्स बिकॉज आई हैव टू गिव द टेस्ट ऑन पर्टिकुलर डेट। तो उस हिसाब से आप प्लान करोगे अपना। ये आपको पता होना चाहिए प्लान कैसे करोगे। ठीक है, अब मैं आपको जो है ये एक कुछ और चीजें बताता हूं मैं कैसे करता था। अब रियलिस्टिक मेरी टाइमलाइंस देखो, थोड़ी कुछ चीजें बता रहा हूं आपको। देखो 6 o'clock से जैसे मैं उठ गया, ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया मैंने, रिवीजन किया। ठीक है, अब सपोज मैं कल जो है हिस्ट्री पढ़ रहा था, एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने हिस्ट्री स्टार्ट की, एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करी। बुक लिस्ट की बात अगर थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ पे देख लो बुक लिस्ट, कुछ लोग पूछ रहे हैं। देखो अगर एंशिएंट की बात करोगे, हालांकि मैं जो है आपको अपना टेलीग्राम आईडी बताऊंगा, टेलीग्राम आईडी पे मेरी नोट्स वहां पे मिलेंगे। तो मैंने जो है तमिलनाडु एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है, और मैंने जो है फिर उसमें जो आर.एस. शर्मा की बुक होती है वो भी मैंने उसमें कुछ इंसर्ट किया, और कुछ नई एनसीईआरटीज जो है ना उससे भी मैंने, क्योंकि मेरा 4 इयर्स का प्रिपरेशन है, 2021 से मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। 22 में मैंने अटेम्प्ट दिया था और 25 में मेरा क्लियर हुआ, तो 4 इयर्स का तो मेरा एग्जाम ही है। तो आई हैव दैट एज। तो मेरा आप नोट्स भी देख सकते हो। अदरवाइज एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आप क्या कर सकते हो, ये जो एनसीईआरटीज है ना, अभी न्यू अगर आपने ओल्ड पढ़ी है तो पढ़ लो, वरना न्यू वाली ले सकते हो, न्यू एनसीईआरटीज पढ़ो आप। यहाँ आप क्लासेस करोगे सारथी में, यहाँ आपको टीचर नोट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की बात करूं, वो जो 11th की एनसीईआरटी है, ठीक है, 11th की एनसीईआरटी कर सकते हो। थर्ड जो है मॉडर्न के लिए अगर आप बात करोगे, तो मैं हिमांशु खत्री सर के नोट्स मैंने पढ़े थे, और प्लस जो है स्पेक्ट्रम तो देखो सब पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम बनाए थे, इसके मेरे आपको नोट्स मिलेंगे। आप मेरे नोट्स जो है ना ये सारे, अगर हिस्ट्री आपको थोड़ा सा बर्डन लग रहा है, आप बेसिक बुक पढ़ो, मेरे नोट्स आप रेफर कर सकते हो इफ यू फील लाइक। बहुत सारे कंटेंट मैंने कंसोलिडेट उसमें किए हैं। रही बात जहां तक ये मिडिवल की ना, मैं सच बताता हूँ, मिडिवल के लिए मैंने कुछ नहीं किया। जो एनसीईआरटी है ना हमारी, उस एनसीईआरटी का जो स्टार्टिंग का है, जहाँ पे वो बैटल वगैरह है, मोहम्मद गजनी घोरी, क्योंकि वो सब क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, और विजयनगर किंगडम, ठीक है, ये सब मैंने पढ़ा। थोड़ा अकबर के ऊपर पढ़ा मैंने, और लूसेंट से मैंने टाइमलाइंस वगैरह सब देख ली, लूसेंट से, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। आर्ट एंड कल्चर मेरा हो रहा था, मिडिवल का आर्ट एंड कल्चर मैंने करा था, बट एक्चुअल में अगर मिडिवल हिस्ट्री की बात, क्योंकि मुझे रिलेवेंस के हिसाब से भी पढ़ाई करनी है, अकबर इज इम्पोर्टेंट, मुगल एम्पायर इज इम्पोर्टेंट, तो थोड़ा लूसेंट से भी मैंने देखा और वो किया, और उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाता था, क्योंकि मैंने मैक्सिमम पढ़ाई पीवाईक्यू बेस्ड की थी। ठीक है, पीवाईक्यू पे जितना था वो मैंने कंटेंट कर लिया था, कवर कर लिया था, मेरे को समझ में आ रहा था। ये हिस्ट्री की हो गया, आई एम श्योर। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर आप बात करोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री की, वर्ल्ड हिस्ट्री ये भी हिमांशु सर के नोट्स, ठीक है। और 6 अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस की आप बात करोगे तो ये भी सर के नोट्स हैं। ठीक है, हिमांशु सर के नोट्स आपको हिस्ट्री में मिल जाएंगे, अगर आप क्लास ले रहे हो, सर के नोट्स का एक्सेस है तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे आपको नोट्स मेरे जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं टाइमलाइन बाद में लिखूंगा। टेलीग्राम चैनल मेरा अगर आप देखोगे तो ये है अनिकेत रंजन _ है, ये AIR48, ये आपको टेलीग्राम चैनल मेरा मिलेगा। इस पे आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे। ठीक है, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है, तो आपको एंथ्रोपोलॉजी के भी नोट्स मिलेंगे।
ठीक है, आई हैव गॉट 316 मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स। तो आपने ये देखा। फिर अगर आप बात करोगे पॉलिटी की, ठीक है, पॉलिटी की अगर आप बात करोगे तो आपको ना कुछ पॉलिटिकल कंसेप्ट्स पढ़ना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, ठीक है, ये 11th वाली बुक जो है, 11th एनसीईआरटी है ये। प्लस क्या करना, वरुण जैन सर की जो है सर यूट्यूब वीडियो है, इस पे ना सर ने फिलॉसफी और कंसेप्ट्स जो है पढ़ाया है, सेक्युलरिज्म, लिबर्टी, उन सब चीजों के ऊपर। इंपॉर्टेंट, अच्छा है वीडियो, अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, वो सारी चीज पे है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं सब लोग जो है, लक्ष्मीकांत तो पढ़ते ही है, ठीक है, और प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, इसका बेयर एक्ट, ये पढ़ना है आपको, रेलेवेंस के हिसाब से पढ़ना है। सी आई फील दैट यू हैव टू स्टडी थिंग्स अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंस, ठीक है। एनसीईआरटी में जितनी चीजें लिखी हुई हैं, मैं आपको पीवाईक्यूज के ऊपर भी बात कराऊंगा, आप पीवाईक्यूज को भी देखेंगे ना, उस हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आपको लगता है उसमें कुछ चैप्टर्स जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे इंडियन आर्किटेक्चर के ऊपर ज्यादा सवाल आता है, स्कल्पचर्स के ऊपर सवाल आता है, तो आप स्टार्टिंग के पहले दूसरे चैप्टर को पढ़ सकते हो, इफ यू फील लाइक और थोड़ा सा एडिशनल रीडिंग की जरूरत है मुझे, आप पढ़ सकते हो, बट पूरा एंड टू एंड मत पढ़ना, जहां पे आपको लगे जरूरत है, यहां से रिलेवेंस है। सी इन पॉलिटी, नहीं, पॉलिटी में यू हैव टू स्टडी थिंग्स अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंस ना। आप देखो रेलेवेंस, मैं बताऊंगा रेलेवेंस, अब तो फिर वो पूरी सारी चीजें हो जाएंगी ना। अब मैं आपको इकोनॉमी की बात बताता हूं। देखो इकोनॉमी की अगर जहां तक बात करोगे, तो ये जो है, आप एनसीईआरटीज पढ़ना चाहते हो पढ़ो, वरना मेरे जो है क्लास नोट्स थे मेरे, ठीक है, क्लास नोट्स थे मेरे, ठीक है, यहाँ से मैंने पढ़ाई की थी। आप यहाँ पे आई एम श्योर आपको आदित्य कालिया सर पढ़ाएंगे, तो मैं भी आदित्य कालिया सर का स्टूडेंट रहा था, तो वहां से नोट्स किए थे। और प्लस जो करंट अफेयर्स होता है, इसको तो आपको करना ही करना है। करंट अफेयर्स आप न्यूज़पेपर से करोगे, न्यूज़पेपर से करोगे, या फिर आपको जो है कोचिंग के कंसोलिडेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। आई एम श्योर GS3 जो है, अगर यहाँ पे अगर मैं बताऊं, GS3 का मॉड्यूल आता है शिविन सर का, है ना, शिविन सर, मैंने इसी को किया था मेंस के लिए। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाता है इतना, इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट इज इनफ, आर्ट एंड कल्चर 11th का जो है, अगर आप बुक पढ़ोगे, इट इज इनफ, प्रोवाइडेड दैट यू हैव टू सॉल्व द PYQs बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। इससे ज्यादा फिर करने की जरूरत नहीं है। एडिशनली में क्या कर सकते हो आप, सारथी IAS का GS1 का मॉड्यूल होगा ना, आप उससे कंटेंट उठाओ और अपने में इंटीग्रेट कर लो। आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा करने की जरूरत है, ठीक है, इट इज सफिशिएंट। ये मैंने आपको बता दिया। इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक की बात करूं मैं, ये शिविन सर का जो मॉड्यूल है, देखो जो मैंने पढ़ा है वही मैं बता रहा हूँ, शिविन सर का मॉड्यूल हो गया। 10 अगर बात करोगे, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा और तो कुछ है नहीं, ठीक है। GS में अगर हम बात करें इथिक्स वगैरह की, तो देखो इथिक्स में तो मैंने पीयूष सर को फॉलो किया था, पीयूष सर के क्लासेस और उनके नोट्स, ठीक है। पॉलिटी और ये सारी चीजें जो है गवर्नेंस वगैरह में कवर हो जाती है। आई एम श्योर ये देखो आपने कर लिया। अब ज्योग्राफी की बात अगर मैं आपको करूं, आई थिंक आपने उसको नोट डाउन किया होगा, ठीक है, 11th में। देखो ज्योग्राफी के लिए क्या कर सकते हो, एक तो आपको कोचिंग में यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे होंगे तो आप वो करो, जो सभी बोलेंगे यही, जो 11th एंड 12th NCERTs, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, प्लस मैपिंग। आई गेस आपको ये पता चल गया
ये आपको पता चल गया, सारे लगभग बुक लिस्ट आपको पता चल गया। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडियलिस्टिक टाइमलाइन बताता हूँ मैं करता कैसे था। सपोज आप जो है 6 AM में वेकअप कर गए या पढ़ने बैठ गए आप, ठीक है। हाँ, सोसाइटी के लिए मैं वो कोचिंग के नोट्स आप उठा लो, सारथी IAS के आप नोट्स उठा लोगे ना, आई थिंक शिविन सर ने प्रोवाइड किया था जब मैं भी प्रिपेयर कर रहा था, आपको उसमें मैक्सिमम नोट्स बनेंगे, ठीक है। वो आप कर सकते हो, मेंस की बात है। लगभग इतना जो पेपर है ना, ये आपको जो है हेल्प करेगा, ये आपको लगभग प्री में हेल्प कर देगा, ठीक है। आप वो कुछ अभी आप इतना ज्यादा बर्डन मत लो, अभी आप बेसिक ये सब पढ़ो। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ डेली का अब कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे करो रिवीजन, देखो ये रिवीजन के लिए टाइम रखो, ठीक है। रिवीजन क्या करोगे, लास्ट डे मान के चलो यू स्टार्टेड एंशिएंट हिस्ट्री एंड यू हैव स्टडीड सपोज प्री हिस्ट्री इंडिया आपने पढ़ लिया है, हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा, वैदिक तक आपने पढ़ लिया, वैदिक का डिफरेंस भी पढ़ लिया, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में क्या क्या है, और आज आप स्टार्ट कर रहे हो महाजनपदास। तो आप क्या करोगे कि आपने जो लास्ट डे पढ़ा वो हड़प्पन और वैदिक कल्चर वाला, आप थोड़ा सा 1-2 घंटे में पढ़ाई कर लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, सपोज 1 घंटे में हो गया आपका, आपने थोड़ा बहुत ब्रेक ब्रेक लिया, आपने 7:30 से फिर पढ़ना स्टार्ट किया, या थोड़ा ब्रेक ब्रेक लेकर के आप जो है 8 AM से फिर पढ़ने बैठ गए, ठीक है। 8 AM से पढ़ा आपने, स्लॉट 1 रखा, ठीक है, स्लॉट 1 रखा आपने। अब ये लेकर के आप मान के चलो 2 से 3 घंटा, हालांकि 3 आवर्स की हमारी मेंस की सिटिंग होती है, यू शुड बी आइडियली स्टडी सिटिंग फॉर 11 तक आप पढ़ना, आपको पढ़ना चाहिए, या तो आप 10 तक भी पढ़ सकते हो, 10 या 11 AM तक आपने पढ़ा, ठीक है। ये स्लॉट 1 का पार्ट हो गया। आप थोड़ा ब्रेक लो, रिलैक्स करो, 1-2 घंटे आप रिलैक्स करोगे। सपोज आप यहाँ पे फिर बोलते हो कि मैं 1 बजे से पढ़ने बैठूंगा, ठीक है, 1 PM से आप पढ़ने बैठ सकते हो। 1 PM से आप पढ़ने बैठोगे तो आप क्या करोगे, ये स्लॉट 2 होगा। अब इसमें क्या कर सकते हो, कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ये कर सकते हो। 2 घंटा आपने पढ़ा, 3 PM तक आप यहाँ पे पढ़े, ये स्लॉट 2 की बात है। फिर आप यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स रिलैक्स कर रहे हो, अब यहाँ पे आपका हो गया 5 PM, ठीक है। 2 घंटे का मैंने आप यहाँ पे ब्रेक ले सकते हो। अब यहाँ से आप क्या करोगे, आप यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। फिर आप चाहो तो इसमें जो है PYQ प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, थीम्स को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, थीम्स एनालाइज कर सकते हो। तो ये सारी चीज कर सकते हो आप। 5 बजे करंट अफेयर्स भी आप पढ़ना चाहते हो तो करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हो, करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हो। अब ये ना डिपेंड करेगा, आज आपने बोला कि आज मैं 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक थीम्स शॉर्ट नोट्स ही बनाऊंगा या बनाऊंगी, दोनों स्लॉट्स के, आप शॉर्ट नोट्स बना लो। आपको लगा कि नहीं मैं शॉर्ट नोट्स थोड़ा बनाऊंगा, थोड़ा PYQ प्रैक्टिस करूंगा, वो कर लो, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपको लग रहा है नहीं थोड़ा 1 घंटा लास्ट में मेरे को करंट अफेयर्स देखना है, आप करंट अफेयर्स देख लो। सो डू थिंग्स व्हाट सूट्स यू एंड व्हाट इज इन योर शेड्यूल फॉर दैट डे, बिकॉज हर दिन एक जैसा नहीं होगा। मतलब मैक्सिमम लोग ना ये करते हैं, रिजिड हो जाते हैं, मैं करंट अफेयर ही उसमें डालूंगा, जरूरी नहीं है ऐसा, आपके साथ नहीं होगा। रोज आपको करंट अफेयर पढ़ने का मन नहीं करेगा तो आप स्लैश कर सकते हैं, या ये या ये या ये फिर ये, ऐसा कर सकते हो। मन कर रहा है करेंट एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं या फिर अपना ऑप्शनल पढ़ रहे हैं तो ऑप्शनल पढ़ेंगे हम अपना, ऐसे कर सकते हैं। कभी कभी मन किया ये सब करना ही नहीं है, ये सब नहीं पढ़ना है, आज मेरे को बस खाली जो है बैठ करके ऑप्शनल पढ़ना है। आपने स्लॉट 1 में 2 GS का स्लॉट रखा और थर्ड स्लॉट में आप अपना ऑप्शनल पढ़ रहे हो, ऐसा भी सिचुएशन कहीं कहीं आता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब आपका ऐसे ही चलेगा, 8 o'clock तक आ गया, और फिर जो है आप थोड़ा बहुत रिलैक्स करोगे, 9 o'clock तक रिलैक्स करोगे आप। उसके बाद आज ही सोच लोगे कि कल क्या पढ़ना है। ये मैं आपको जनरल अभी बता रहा हूं। आप क्या कर सकते हो, 2 स्लॉट जो है GS का रखो, 1 स्लॉट आप चाहो तो अपना ऑप्शनल का रख सकते हो, ये कर सकते हो आप। बट मेरा आपको ये सुझाव होगा जो 2027 के लिए है, 2027 के लिए, ठीक है, अपना ऑप्शनल जो है ना, डिसाइड योर ऑप्शनल बाय जून तक आप डिसाइड कर लो,
और स्टडी करना स्टार्ट करो। सो व्हेन यू हैव 2-3 थिंग्स, ऑप्शनल भी क्लास चल रहा है, इकोनॉमी भी चल रहा है, और आपने बताया कि हिस्ट्री का भी क्लास नहीं हो पा रहा है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पे प्रायोरिटी सेट करनी होगी। अब प्रायोरिटी सेट कैसे करोगे, योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन राइट नाउ। अब आपको 2027 में प्रिपरेशन देना है, तो आप एक चीज ये अपने में ध्यान दो कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बहुत जल्दी कवर कर लोगे, बहुत जल्दी कवर करोगे, ये आपको पता होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक। 3-4 सब्जेक्ट्स आपका पैरेलली चल रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि कौन सा सब्जेक्ट आप बहुत जल्दी कवर कर लोगे विद शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम। तो अगर मेरे से पूछा जाता ऑप्शनल हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में, तो मैं कहता कि मैं इकोनॉमिक्स जो है कंसेप्चुअली, इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कंसेप्चुअल बेस्ड है। आज कंसेप्ट पढ़ूंगा तो मैं 2-4 महीने बाद भी पढ़ूंगा CRR SLR क्या, तो मुझे पता होगा। बट अगर आप मुझसे हिस्ट्री के बारे में पूछोगे कि कहाँ पे किसने किस स्टैच्यू को बनाया, या फिर कहाँ पे कौन सा पिलर है, कौन सा क्या है, तो मैं 4 दिन के बाद नहीं बता पाऊंगा। तो व्हाट आई विल डू, हिस्ट्री को मैं बाद में पढ़ूंगा, हिस्ट्री आई विल पुट लेटर। उससे पहले मैं क्या करूंगा, उससे पहले मैं रखूंगा इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमी को, क्यों, ये कंसेप्चुअल बेस्ड है। उससे पहले मैं रखूंगा ऑप्शनल। क्यों ऑप्शनल को रखूंगा, क्योंकि ऑप्शनल अगर मैं अभी पढ़ूंगा तो कल को जब मैं मेंस दूंगा तभी तो मैं इसको फिर से पढ़ूंगा, इसलिए इसको पहले कवर करके खत्म करूंगा। तो आपका फोकस ये रहेगा। हाँ हाँ, इकोनॉमिक्स के लिए जो प्रीलिम्स में मतलब शिविन सर ने पढ़ाया है, दैट इज इनफ। ठीक है, आप उसको देख सकते हो। सो यू शुड फोकस ऑन योर ऑप्शनल फर्स्ट। हिस्ट्री और इको में आप डिसाइड करो, मैं रहता तो इको करता पहले, क्योंकि कंसेप्चुअल बेस्ड है, इसको आप करो, आप मैनेज करो। या तो आप दो चीज को अभी मैनेज करो, हिस्ट्री छोड़ दो। हिस्ट्री का कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 20 लेक्चर होगा। आप फिर स्पीड में देखना उसको, 20 लेक्चर को 2 लेक्चर एक दिन में देखना, 10 दिन में आप उसको निपटा लोगे। तो बैलेंस करना पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। हिस्ट्री आप बाद में कर सकते हो। ठीक है, तो ये है ऑप्शनल, आप जून तक डिसाइड करो। ये आपको मैंने टाइमलाइन बताया। टाइमलाइन का सिंपल सा कहानी है कि एटलीस्ट पुट 2 GS स्लॉट्स। ठीक है, 2 से 3 घंटे का पर डे। उसके बाद एक स्लॉट जैसे ही आप जून में एंटर करोगे, 4 घंटे या 3 घंटे का, देखो कोई भी मुझे लगता है ऑप्शनल का अगर कोई क्लास लेगा तो 2-3 घंटे का ऑप्शनल का क्लास जाएगा। ठीक है, 2.5 घंटे से 3 घंटे का। फिर उसको रिवाइज तो करोगे भाई, तो 2 घंटे से 2.5 घंटे उसका रिवीजन और उसका शॉर्ट नोट्स में जाएगा। शॉर्ट नोट्स नहीं भी पर डे बनाओगे तो रिवीजन। तो 5 आवर्स अ डे जब ऑप्शनल पढ़ोगे, आपका लेगा पर डे। अभी मैं जून से बता रहा हूँ। उसके बाद आपके पास टाइम जो बचा, मे बी आपने फिर GS का भी क्लास ले लिया, 2 घंटे का आपका 2.5 घंटे का GS का क्लास होगा, उसको भी तो रिवाइज करोगे, उसको भी तो पढ़ोगे। ये सेल्फ स्टडी के हिसाब से मैंने बता दिया आपको, 2 GS के और एक ऑप्शनल के। और जो अगर कोचिंग कर रहे हैं, कोचिंग में आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा है, आप हिस्ट्री पढ़ो, उसको रिवाइज करो, उसके PYQ प्रैक्टिस करो, और उसको आप जो है नोट्स बनाओ। आप ऑप्शनल साथ साथ में पढ़ रहे हो, ऑप्शनल पढ़ो, उसके बाद जो है उसका नोट्स बनाओ। आप एक्स्ट्रा बर्डन मत लेना, आप 2 GS को मत लेके चलना, नहीं चला पाओगे। ठीक है, ये आप कर सकते हो। इतना तो समझ में आ गया कि 2 अलग अलग टाइम टेबल बनेंगे, एक विथ कोचिंग, एक विदाउट कोचिंग। आई एम श्योर दिस इज अंडरस्टूड। I'm sure this is understood now with self study and with ये coaching. Current affairs I have put at the end. See, I have told you current affair जो है आप end में रख सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। See, आप ये चीज देखो कि this session is only about daily schedule and you are asking some specific questions within that points. तो मेरे लिए उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको हर चीज पे स्पेसिफिक में बताऊं कि न्यूज़पेपर भी कैसे पढ़ लेंगे, वो भी कैसे करेंगे। तो न्यूज़पेपर के लिए फिर आपको अलग से फिर जो है सोचना पड़ेगा, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसका एक अलग रहेगा। आई थिंक हिमांशु खत्री सर ने न्यूज़पेपर रीडिंग पे एक अच्छा यूट्यूब पे वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हो। अगर भाई इफ यू हैव टेकन फाउंडेशन कोर्स एट अदर इंस्टीट्यूट और आपको जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं हुई है, सी द बेस्ट टेस्ट टू चेक योर क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन इज टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर बोथ मेंस एंड फॉर प्रीलिम्स, दिस इट इज एज सिंपल एज दैट। अब मैं आई होप ये आपको समझ में आ गया, और थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे और कर सकते हो। अभी तो आपका जो है प्रिपरेशन स्टार्ट है। देखो आपको ना फोकस एक ही चीज पे करना चाहिए कि जितना हो सके रिवीजन के ऊपर फोकस करो, और रिवीजन के साथ साथ में जो है डेली प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे करो। देखो अगर कोई सेल्फ स्टडी कर रहा है ना,
देखो सेल्फ स्टडी ही विल मेक यू विन। आप कहीं से कोचिंग भी करोगे ना, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। सेल्फ स्टडी कर रहा है ना, तो आप देखो पर डे जो है आप क्या कर सकते हो, ठीक है, 2 GS लो, ठीक है, ऑप्शनल आप स्टार्ट करो अभी से, ऑप्शनल स्टार्ट करो, ठीक है, ऑप्शनल जो है आपका एक स्लॉट होगा आपका, ठीक है, एंड बी मीन्स रेडी बाय December/January, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। अभी प्रीलिम्स का पढ़ो, आपका जैसे ही कि देखो दिसंबर होगा, नवंबर होगा, अक्टूबर होगा, सितंबर होगा, 4 मंथ्स, जीएस को डिवाइड करो इसमें, ठीक है। और आपके पास इधर क्या है, अगस्त है, ठीक है, जुलाई है, जून है, और मई तो है ही आपका, ठीक है। इसमें क्या करो, इसमें क्या करो आप यहाँ पे अपना यहाँ पे प्रीलिम्स का प्रिपरेशन करो। प्रीलिम्स में क्या करोगे, बेसिक बुक्स पढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्लासेस कर रहे हो, क्लासेस करो और नोट्स बनाओ। अभी सिर्फ प्रीलिम्स का बनाओ। देखो मैंने आपको बोल दिया ना, GS 1 2 3 4 आप जैसे भी जंबल कर लो, और जून से अगर ऑप्शनल यहां से स्टार्ट करोगे, ये देखो, ये जून से अगर ऑप्शनल स्टार्ट करोगे तो देखो ऑप्शनल कितना दिन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 7 मंथ्स तो आपका ऑप्शनल हो गया। अब आपको टाइमलाइन थोड़ा समझ में आ रहा है। अरे आपने प्रिपरेशन इधर अप्रैल से भी तो स्टार्ट किया होगा, अप्रैल होगा, मार्च होगा, है ना, किसी ने फेब से भी स्टार्ट किया होगा, तो ये भी तो आपका काउंट होगा प्रीलिम्स में। आई होप ये वाला टाइमलाइन समझ में आ गया कैसे आप करोगे। ये अभी आपने मई जून जुलाई अगस्त तक क्या करना है, प्रीलिम्स का पढ़ो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो, जितना कर सकते करो। कोचिंग के साथ चल रहे हो तो कोचिंग आपको मेंस भी पढ़ा रहा होगा, तो जो आप यहाँ जीएस स्पेसिफिक एक महीने में एक जीएस करना। GS 1 अगर पढ़ना चाहते हो पहले सितंबर के महीने में पूरा GS 1 पढ़ डालो, ऑप्शनल तो कर ही रहे हो, ठीक है, इतना समझो। और अगर कोचिंग के साथ में चल रहे हो, कोचिंग के साथ में चल रहे हो तो दे विल टेक यू अलोंग, तो दे विल टीच यू प्रीलिम्स मेंस आल्सो, तो उस हिसाब से आप टाइम अपना ऊपर नीचे करोगे। आई होप दिस इज क्लियर एंड प्लीज डोंट टॉक अबाउट द इंस्टाग्राम एंड ऑल। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज द ब्रॉड प्लान। सी आई विल रिकमेंड यू टू रीड न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में भी आपको क्या करना है, डोंट इन्वेस्ट योर सो मच ऑफ टाइम इन रीडिंग न्यूज़पेपर। सी योर प्रायोरिटी हैज टू व्हाट, टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स और मेंस का। उसके लिए क्या करना होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। सिलेबस बुक से आएगा, न्यूज़पेपर क्या करता है, इज जस्ट इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री काइंड ऑफ थिंग, है ना, टू द अटैच्ड सिलेबस और जो भी कोर थिंग्स है। तो न्यूज़पेपर में आप एनालिसिस के ऊपर ज्यादा फोकस करें। एडिटोरियल के एक सेक्शन को आपने पढ़ लिया, कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से बात आ गई, कुछ इन्वायरमेंट इकोनॉमी की बात आ गई, तो कुछ पॉइंट्स अगर कुछ नया वैल्यूएबल आपको बेस्ट प्रैक्टिस मिल गया या कुछ मिल गया, वो मिलेगा ही मिलेगा। एंड न्यूज़पेपर रीडिंग इज अ वेरी गुड हैबिट एंड एसेंशियल हैबिट। तो आप फर्स्ट पेज पढ़ें पर डे का, पर ज्यादा से ज्यादा मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था तो फर्स्ट पेज पढ़ता था, वर्ल्ड न्यूज पढ़ता था, और तीसरा मैं एक्सप्लेन्ड पेज पढ़ता था, और मेरे पास टाइम अगर बच गया तब मैं जो है आइडियाज पेज उसका पढ़ता था या एडिटोरियल पढ़ता था। ये 4-5 पेज से ज्यादा नहीं पढ़ता था मैं, बट प्रायोरिटी हैज टू बी एक्सप्लेन्ड पेज, फर्स्ट पेज, एंड फिर वर्ल्ड न्यूज को। GS 3 मॉड्यूल प्रीलिम्स के बाद आता है या फिर इसी टाइम पे आता है, जहां तक मुझे पता है। हाँ, स्पेसिफिक मिस्टेक जो मैं बताना चाहता हूँ, दैट स्टेज्ड मी टू 4th अटेम्प्ट। पहला बात की लाइक मोस्ट ऑफ यू, आई वाज थिंकिंग कि ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ऐसे कर लूँ, सारे सोर्सेस देख लूँ, कभी ये बुक अच्छा लग गया, कभी वो बुक अच्छा लग गया, इससे मेरा कंसोलिडेशन नहीं हो पाया। आई वाज नॉट एबल टू फोकस ऑन व्हाट इज एक्चुअली बीइंग आस्क्ड बाय यूपीएससी। तो ये रिपीटेड रिवीजन नहीं, एंड सेकंड थिंग इज रिवीजन। रिपीटेड रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव मेड नोट्स, मेरा आप टेलीग्राम पे जाओगे, है ना, ये जो मेरा टेलीग्राम है, यू विल फाइंड नोट्स, पॉलिटी के नोट्स हैं, हिस्ट्री के नोट्स हैं, ज्योग्राफी के नोट्स हैं। तब मुझे रियलाइज हुआ आई हैव टू मेक द नोट्स, एंड आई हैव मेड वेरी क्रिस्प नोट्स, 60 70 80 पेजेस के नोट्स हैं, एंड दैट्स इट। वही नोट्स को मैं एक बार नहीं
हजार, मतलब उसको मैंने इतनी बार उसको पढ़ाई की है कि आप मानोगे नहीं। प्रीलिम्स के पहले जो है मैंने उसको 4 से 5 बार पढ़ा होगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई डिड। एंड द सेकंड थर्ड थिंग इज दैट इमेंस प्रैक्टिस। पीवाईक्यूज को एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई वुड लाइक टू टेल यू, प्रीलिम्स मेरा 2 बार नहीं क्लियर हुआ। ये देखो, आपको मैं दिखाता हूं कैसे मैं प्रीलिम्स को एनालाइज करता हूं। लोग कहते हैं कि हाउ टू एनालाइज द पीवाईक्यूज। ये देखो, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या? ये क्वेश्चन है, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन। अब देखो क्या है क्वेश्चन, पूछा गया रिसेंटली लिंकिंग ऑफ द रिवर इज अंडरटेकन। तो क्वेश्चन आंसर तो यही है, गोदावरी एंड कृष्णा का। बट एट द सेम टाइम मैंने क्या इसमें पढ़ाई की, कावेरी का मैंने जो है देखा कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कावेरी, ब्रह्मगिरी हिल्स, तुंगा का तुंगा एंड भद्रा, गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर नासिक, कृष्णा का महाबलेश्वर, और यहाँ पे कौन सा ये प्रोजेक्ट है, पट्टिसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। महानदी का सिहावा माउंटेन एंड सोन का मैकाल रेंज। आप सोन ये पता होगा कि ये अमरकंटक यहाँ पे होगा, अमरकंटक, और यहाँ से सोन नदी जाती है और ये गंगा में मिलती है। आपने ये भी पढ़ाई कर ली। आप देखो यहाँ पर से ये है, ठीक है। और यहाँ पे नर्मदा का अमरकंटक हमने देख लिया। एंड नर्मदा यहाँ पे क्या बनाती है, रिफ्ट वैली बनाती है। आप ये भी पढ़ोगे, ठीक है। नर्मदा इज व्हाट, नर्मदा इज वेस्ट फ्लोइंग रिवर। नर्मदा, तापी, लूनी, एंड तापी इज ऑल्सो बेतल प्लेटू। आप ये इसमें कुछ नोटिस करोगे, ये कावेरी तुंगभद्रा जो है, कावेरी आई थिंक इधर जाती ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, गोदावरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, कृष्णा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। बट आप जैसे नर्मदा तापी देखोगे तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो ऐसे ही आप जो है पीवाईक्यूज को भी एनालाइज करोगे, ठीक है। ये पीवाईक्यूज का एनालिसिस हुआ। ये देखो, ये बीआईएस के ऊपर क्वेश्चन था कि द स्टैंडर्ड मार्क और बीआईएस हो जाता है इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमेटिव टायर्स एंड ट्यूब्स। अब देखो मैंडेटरी शब्द आया जैसे, अब मैंडेटरी पे मैं क्या फोकस करूंगा कि टायर्स एंड ट्यूब मैंडेटरी क्यों है भाई, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है लाइफ को। जहां भी इंसान की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होगी उसमें बीआईएस का मार्किंग करेंगे। तो इसके हिसाब से कहाँ का मैंडेटरी हो सकता है, फूड में होगा, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, सीमेंट, और भी कुछ कुछ चीजें आपको विकिपीडिया से मिलेंगी। और बीआईएस के ऊपर क्या पढ़ा मैंने, इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी, किसी न किसी जो है ये लॉ से आया होगा। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंदर आता है, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया भी यही लाता है, फॉर फूड सेफ्टी ह्यूमन लाइफ। एग मार्क एग्रीकल्चर वाला बात है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन इशूड बाय एफएओ, एफएओ से नहीं है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन से है। तो देखो कैसे जो है आई हैव फोकस जो है मैंने पीवाईक्यूज को एनालाइज किया है। आई होप ये पीवाईक्यू एनालिसिस आप जरूर करते होंगे और करने से आपको हेल्प मिलेगा। माय इंटरव्यू मीडियम वाज इंग्लिश एंड माय मार्क्स वाज 184, ठीक है। अब यू कैन सी दिस क्वेश्चन आल्सो, ब्लैक सी, क्रोएशिया, कजाकिस्तान, ये है। सो दे हैव आस्क्ड यू अबाउट मैच द फॉलोइंग। अब कैस्पियन सी है तो मैंने यहीं पे देख लिया, तारीख करके लिख लिया, ब्लैक सी देख लिया, टिबॉक करके लिख लिया, एड्रियाटिक सी लिख लिया, रेड सी का डेसी कर लिया। सो सी व्हेनेवर यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यू नीड टू हैव अ ब्रॉडर व्यू अबाउट दोस क्वेश्चंस व्हिच आर बीइंग आस्क्ड। आपका यहाँ पे आप देखो मैपिंग भी कवर हो गया, आईआर भी कवर हो गया, आपने कंट्रीज को भी देख लिया। ओके, दिस इज हाउ इट इज हेल्पिंग यू। अब ये एक और क्वेश्चन होगा शायद, तानसेन के ऊपर क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू मियां तानसेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तानसेन वाज टाइटल गिवन टू हिम बाय अकबर, इट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। yes you can give your interview in hindi if you are writing mains in english। अब तानसेन के बारे में है, अब मैंने लिखा इसके 2 बुक्स के नाम, श्री गणेश स्तोत्र एंड संगीत सार। टाइटल जो है इसको किसने दिया था, राजा विक्रमजीत सिंह ऑफ ग्वालियर। रियल नेम इसका रामतनु पांडे है। तानसेन वाज कोर्ट पोएट ऑफ राजा रामचंद्र सिंह ऑफ रेवा। एंड टाइटल क्या क्या मिला था, मियां कंठ भरन वाणी विलासा, ये मिल गया। तो अब देखो कैसे कर लिया मैंने। अब मैं इसको कैसे कंटेंट को डालता हूं, अब थोड़े बाद मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप कर सकते हो पीवाईक्यूज। आप पढ़ाई कर रहे हो, अप्रैल मई से आप पढ़ाई कर रहे हो। अभी आप क्या करोगे, आप पढ़ते पढ़ते जो है इन सब चीजों के ऊपर जो है बेसिक बुक्स पढ़ोगे, 1 बार 2 बार रीडिंग करोगे, सारे बेसिक बुक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, और भी जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी क्वेश्चंस इससे यूपीएससी में प्रीलिम्स में आते हैं। आपको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो गया, न्यूज़पेपर भी साथ साथ में पढ़ रहे हो,
ट्रिब्यूनल का आया कुछ न्यूज, गवर्नर का आया, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ से सारा सवाल है। अब क्या करना है आपको, पीवाईक्यूज को एनालाइज करना है इसी तरीके से। एक स्लॉट बनाओ, 2 घंटा 3 घंटे का पर डे कहीं पे भी बना लो, जब भी आपको मौका मिलता है आप थोड़ा सा विंडो बनाओ। रोज मत करो बट 1-2 दिन, हफ्ते में 3 दिन 4 दिन जरूर किया करो। स्लॉट बनाओ और इस तरीके से करो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब विद रेफरेंस टू मियां तानसेन मैं गूगल पे डालूंगा, मुझे लिंक मिलेगा, मे बी किसी किसी कोचिंग्स का मिलेगा, कहीं कहीं विकिपीडिया पे मिलेगा। कोई स्टार्टिंग में कुछ कुछ आंसर्स होगा ना, तो यहाँ पे आप जो है इसमें लिख लो। अब ये लिख लिया मैंने और ये मेरा यहाँ पे आंसर्स हो गया। सपोज आप पॉलिटी भी पढ़ रहे हो और हिस्ट्री का भी आप जो है पेपर सॉल्व कर रहे हो, क्यों, पीवाईक्यू एनालाइज कर रहे हो। और मैं ईयर वाइज करता था, ठीक है। मैं 2024 का पेपर मैं अभी गूगल से मैं निकाल लूंगा, उसको पीडीएफ डाउनलोड कर लूंगा और स्टार्टिंग से 1 से लेके 100 क्वेश्चन को मैं जो है वहीं पे एनालाइज करने लगूंगा, irrespective of the subject I am studying right now. Suppose I am studying history, it doesn't matter कि मैं हिस्ट्री का ही पेपर सॉल्व करूंगा, पॉलिटी भी कर लूंगा, सब पेपर एक साथ में रिवीजन हो रहा है। तो ये भी करता था मैं साथ साथ में। I think this is the thing that helped me a lot in clearing the prelims. Earlier I used to get 40, 42, 47 marks. 22 और 23 में मेरे को कुछ 45, 47 मार्क्स आते थे। बहुत पैथेटिक मार्क्स से, मुझे ये फील ही नहीं हो रहा था मैं यूपीएससी का भी जिंदगी में निकाल पाऊंगा। फिर मैंने क्या किया 2024 में, शिविन सर उस समय वो बहुत ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और वो उन्होंने शेड्यूल वगैरह निकाला था, फॉलो किया मैंने उसको। पीवाईक्यूज को एक्सटेंसिवली मैंने ये फोकस किया था एनालिसिस के ऊपर, एंड उस रीजन से 24 का पेपर क्लियर हुआ एंड उस पर और एडिशन एप्टीट्यूड डेवलपमेंट हुआ इन 2025 में एंड आई क्लियर्ड द प्रीलिम्स। मेरा फॉरेस्ट का भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ था। You can give the free mock test whenever you get the chance. I hope this is clear. आप देखो सेम कबीर के ऊपर भी मैंने निर्गुण सेक्ट के ऊपर मैंने लिख रखा है, भेद अभेद फिलॉसफी वगैरह मैंने ये लिख रखा है। तो इस तरीके से मैं करता हूँ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि आप कैसे करेंगे। मेंस के लिए जो है स्पेसिफिकली एक अलग सेशन होगा, मेंस में आप थीम्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आंसर राइटिंग वगैरह कैसे करेंगे। बट ब्रॉडर यही है कि यू हैव टू फोकस। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो 2 जीएस का स्लॉट रखें। जैसे ही आपका जो है प्रॉपर सारा एक बेसिक बुक्स 1 या 2 बार रीडिंग होता है, न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग होती है 2-3 महीने के बाद, आप पीवाईक्यू एनालिसिस के ऊपर फोकस करें। जून के आसपास में जो है आप अपना ऑप्शनल डिसाइड करें, ऑप्शनल को फिर तब से पढ़ना स्टार्ट करें अपना जो भी ऑप्शनल आपका है, एंड उसके बाद आप दिसंबर जनवरी तक जो है मेंस रेडी रखें। खुद से आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सितंबर के महीने से जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 मंथ्स 4 जीएस है ना, एट द सेम टाइम ऑप्शनल के साथ चलते रहें और आप इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अगर आप जो है किसी कोचिंग में हो, सारथी आईएएस के फाउंडेशन कोर्स में हो, आई एम श्योर दे मस्ट हैव टेकन दिस आल्सो इनटू कंसीडरेशन कि 2027 में इनको प्रीलिम्स देना है तो इनका सिलेबस जो है फरवरी मार्च में कंप्लीट हो जाए, रेगुलर टेस्ट हो, रिवीजन हो, तो आप उसी हिसाब से अपना सिलेबस को कंप्लीट करें। आपको अगर हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, आपको ज्योग्राफी पढ़ाया, आई एम श्योर उनको कंसेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट सभी पढ़ाया जा रहे होंगे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ऐसे पेपर्स आपको पढ़ाए जा रहे होंगे। हिस्ट्री वगैरह थोड़ा सा लेट पढ़ाएंगे, इतना मुझे लग रहा है। तो आप ज्योग्राफी पढ़ें, ज्योग्राफी ही पढ़ें, 2-2.5 घंटे ज्योग्राफी पढ़ें, फिर उसके बाद रिवीजन करें उसका और फिर नोट्स बनाएं उसका, एंड फिर कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर आप ऑप्शनल अपना पढ़ते हैं तो ऑप्शनल पढ़ लें 3-4 घंटे, उसको कर उतना टाइम दें। आपके पास टाइम बचता है तो फिर करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करें। करंट अफेयर में इंडियन एक्सप्रेस या हिंदू में से कोई भी पेपर उठा सकते हैं और उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी फ्रंट पेज, वर्ल्ड न्यूज पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद जो है आप एक्सप्लेन पेज पढ़ सकते हैं एंड फिर एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। सो ये सारा चीज आप करेंगे और आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। यू शुड सॉल्व द पीवाईक्यूज एज मच एज यू कैन। प्रीलिम्स जैसे मेरा फियर था 47, 45, तो मैंने फियर को हटाने के लिए क्या किया, प्रैक्टिस ही बहुत ज्यादा कर लिया। तो मैं 1979 या 1976 तक, इतना तक तो मैं गया था। बट 2009 तक जो है मैं फुल पेपर, यूपीएससी आपको गूगल पे मिल जाएगा, वेबसाइट पे आप डाउनलोड कर सकते हो। बट 2009 के ऑनवर्ड्स ना आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा। तो क्या आप उधर क्या किन पेपर्स को फोकस करोगे, पॉलिटी कभी चेंज नहीं होगी, हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होगी, फिर आप कोशिश करोगे तो थोड़ा बहुत इकोनॉमी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इतना पेपर्स आपको 2009 ऑनवर्ड्स देखना है। हिस्ट्री को प्रायोरिटी करो, ज्योग्राफी करो, पॉलिटी करो 9 के ऑनवर्ड्स, 9, 8, 7 है ना, 6 वैसे वैसे।
सारथी आईएएस में मैंने देखो कोर्स जो लिया था, शिविन सर का साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट का कोर्स लिया था, GS3 का कोर्स मैंने पढ़ा था। पीयूष सर से मैं जुड़ा रहा था पहले भी, तो पीयूष सर तो यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, तो पीयूष सर हैं ही, उनका कोई इशू है ही नहीं। हिमांशु खत्री सर के साथ मैं उनके जितने भी हिस्ट्री के नोट्स वगैरह हैं वो पढ़ाई की थी मैंने। फिर वरुण सर के जो है लेक्चर्स वगैरह अवेलेबल थे, वो देखे हैं मैंने, आपको अभी बताया मैंने पॉलिटी को लेकर के। शिविन सर को मैं बहुत फॉलो करता था, उनकी जितने भी लेक्चर्स आते थे सारथी पे या उनके खुद के चैनल पे, मैं उसको फॉलो करते रहता था लगभग। नो, डोंट मेक नोट्स फॉर एनसीईआरटीज। मैं आपको बताता हूँ नोट्स कब से बनाना है। स्टार्ट मेकिंग नोट्स आफ्टर 2 to 3 readings, because after 2 readings you will able to understand the syllabus. You will then also look into the PYQs, और जब PYQs देखोगे तो important चीज पता चलेगी कि क्या क्या है। और इसका भी मैं टेस्ट बताऊं कि नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स का क्या, कितना मेरे को क्या बनाना है, सारा ही चीज लिखना है क्या। आप टॉपर्स के नोट्स देखो, ठीक है। सपोज कोई आप हिस्ट्री अभी पढ़ रहे हो, या सपोज आप अभी पॉलिटी पढ़ रहे हो, अब आपको समझ नहीं आ रहा पार्लियामेंट में क्या नोट्स बनाना है, क्या नहीं बनाना है, तो पहला टेस्ट तो ये है कि भाई PYQs देख के नोट्स बनाओ। अगर आपको समझदारी है तो आप बना सकते हो, अदरवाइज व्हाट विल यू डू, यू गो टू द टॉपर नोट्स। टॉपर नोट्स में देखो कि पार्लियामेंट में या फिर चैप्टर में कैसे उसने नोट्स बनाया है, समझ में आएगा तो फिर उसके हिसाब से बनाओ। आप मेरे नोट्स देख सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, राइट। हाँ, यू हैव टू मेक नोट्स फ्रॉम लक्ष्मीकांत, क्योंकि आपको लक्ष्मीकांत एग्जाम से पहले रिवाइज करना है जल्दी। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू डोंट नॉट टू मेक नोट्स कंबाइंड। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बना सकते हो, अदरवाइज मेक सेपरेट नोट्स, बिकॉज मेंस इज समथिंग डिफरेंट। सी, मेंस के लिए तो यू गिव पेड ओनली टेस्ट ना। प्रीलिम्स के लिए आई गिव वट एवर इज अवेलेबल इन द मार्केट। See, it depends upon your capacity. As the exam approaches, you should study at least 10 to 11, 12 hours. But अभी normal time में आप you should at least study 6 hours, 6-7 hours तो पढ़ना ही चाहिए अभी। CSET में अभी आप जो है 2025 का पेपर उठा लो, आप अगर जो है 80-85 नंबर आप ला रहे हो तो यू आर इन अ गुड रेंज। अगर आपके नंबर बहुत पैथेटिक हैं, 30-40 नंबर ला रहे हो, तो इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन 2027, तो दिसंबर के महीने से उस पर फोकस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस जो है अलग तरीके से है, शिविन सर ने बताया है कि आपको देखना है कैसे कैसे करके, सो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। मेंस बुक लिस्ट, आप मेंस बुक लिस्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, इफ यू आर बिगनर एंड इफ यू वांट टू मेक नोट्स, तो आप जो टॉपर्स के नोट्स पहले तो आप उठा सकते हैं, दैट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंड क्या करें, उसके थीम्स को आइडेंटिफाई करें, जुडिशरी से देखें कि कैसे कैसे सवाल आया है। जुडिशियल एक्टिविज्म पे आया है, जुडिशरी ने कई बार ट्रिब्यूनल्स के ऊपर सवाल पूछा है, इन्वायरमेंट के ऊपर सवाल पूछा है, तो आप गूगल करो, आपको बहुत सारे कंटेंट खुलेंगे वहां पे, आप वहां से नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो। तो दो तरीका ये है, और आप सारथी आईएएस का आपको नोट्स अवेलेबल हो सकता है, एक्सेस हो सकता है, आप यहाँ से नोट्स एक्सेस करो और इससे नोट्स से फिर जो है शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। देखिए, आई वुड सजेस्ट यू, देखिए स्टैंडर्ड बुक्स आर समथिंग दैट विल broaden your horizon, because books are written in such a way, it is to not only to used for that competitive exam. Books are used to broaden your thinking pattern, broaden your wisdom. So books are non-negotiable. Don't run behind from reading books. at least standard books तो पढ़ लेना चाहिए, notes तो उसको supplement करेगा ना, वो तो extra चीज है। IR के लिए, IR के लिए just focus on newspapers. Yeah, I have taken coaching. I have taken not the coaching, because for optional I have, and for other things also, because I have a long journey for 4 years now. I was having few engagement here and there. I told you ना notes कैसे बनाए, notes का एक ही फंडा है, मैंने बताया आपको। Look through the toppers notes. टॉपर्स नोट्स में देखोगे तो इंपॉर्टेंस पता चलेगी क्या क्या लिखना है, एंड फिर वहां से आप बना सकते हो। And thank you guys. I think I have taken the session on this daily schedule. What is the actual daily schedule of UPSC toppers? See, सारे questions एक दिन में नहीं हो पाएंगे, ठीक है। You are having so many other questions as well.
So thank you so much for that. We'll be taking so many other sessions also, सारे चीज के ऊपर. So don't worry. आज का मैं शेड्यूल मैंने आपको यही बताया था कि आप डेली कैसे पढ़ेंगे. तो डेली कैसे पढ़ना है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि कैसे पढ़ना है, बोथ विथ सेल्फ स्टडी एंड विथ क्लासेस. आई एम श्योर दिस इज व्हाट यू अंडरस्टूड, राइट? ये तो आपको समझ में आया होगा. ओके, थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.